2021, jointly organized by Lahore Tax Bar Association and ACCA, Association of Chartered Certified Accountants. We have a very high level and thought provoking session lined up for you. We would like to thank Lahore Tax Bar Association for their collaboration for this event with ACCA. And we must also stress that this event was organized at a short notice, and this basically underlines the close collaboration between the two professional bodies. The purpose of today's session is to think a bit differently. We have had several post-budget sessions already. ACCA has already conducted several post-budget sessions. We had the first one conducted by our taxation subcommittee, where the entire panel was based on ACCA taxation subcommittee members, and it was very well received. The recordings were also viewed. A lot of attendees came in the live session, and they asked to organize another session. Then we had the second session with the Pakistan Stock Exchange. So Pakistan Stock Exchange collaborated with the ACCA for that second post-budget session. And in that, the focus was on various reforms, changes, etc. In today's session, I will be introducing our panelists in a bit, and you'll see how we have some of the notable thought leaders from the profession as well as industry with us today. But the main aim of this session was to also focus on the economic imperatives, to look at the entire context, the situation in this the current situation with COVID and everything happening, the global recessionary pressures during which this finance bill has been introduced, and what would be the impact. We would certainly be discussing some of the key changes, especially with regard to taxation and the reforms, but that's not all. So stay tuned for all that. But in order to formally begin the proceedings, I would like you all to welcome Mr. Sajid Aslam, the head of ACCA Pakistan, to deliver his welcome address and formally start today's session. Thank you, Umar. And thank you very much for all the viewers, and thank you very much LTBA to joining us. It's important. I think there are a lot of people who came back and they talked about that कि budget पे बहुत ज़्यादा sessions हो रहे हैं और क्या इतने sessions होने चाहिए, क्या लोगों का ये level of interest है. मैं ख्याल एक सबसे important area जो I would like to highlight is the level of awareness. Budget is not something which can be seen in isolation. Budget is something which has to be seen in the context of the economic model which Pakistan is trying to adopt, adapt or create. So एक बड़ी हम normal बात करते होते हैं inclusivity की side पे, and that inclusivity बहुत ज़रूरी है जब हम budgets और government के agendas की या हम ऐसे agendas की बात करते हैं जो कि हमारे national agendas हैं. Budget in isolation is nothing. It's basically an indication, and it's a spend, how we are going to collect money and where we are going to spend. But end में इसके सबसे बड़े measures जो हमारे लिए होते हैं वो है कि किस तरह की social और economic development we can see on ground. अगर हम इस बजट को particularly 2021 के बजट को देखें तो ये एक crisis के context में develop किया गया हुआ है. इस बजट के challenges अगर आप एक्सपेंडिचर की साइड पे देखेंगे तो शायद हमारे पास फेडरल लेवल पे बहुत थोड़ी अमाउंट रह जाती है जो कि हम डेवलपमेंट पे स्पेंड कर सकें. इट्स लेस देन 11% ऑफ द टोटल बजट व्हिच इज गोइंग फॉर द डेवलपमेंट स्पेंडिंग, बट अ लॉट ऑफ अमाउंट इज being consumed by the debt burden which or debt servicing because of the debt burden we have right now. But at the same time, if we look at the collection side and we look at that what kind of targets FBR is looking at and what kind of opportunity we are sitting at. So, अगर हम अपने GDP को देखें और GDP tax ratios को देखें और हमारी journal practices को देखें, I would say, so हमारे businesses जो billions में भी run हो रहे हैं, शायद उनका contribution towards the tax बहुत थोड़ा है. And that's one of a challenge which we are facing in journal. And that's a very big challenge which we are facing. Tax burden जो है वो बहुत थोड़े लोगों के ऊपर आ रहा है. Although अगर आप tax की broadening of tax के initiatives को देखें तो शायद हम last 3 years में from less than 1 million से 2.6 million पे पहुंच गए हैं, लेकिन उसमें से actually the contribution which is being made by different people. So income tax के case में there are top 300 organization which is basically contributing towards the 80% of the income tax collection.
ऑर्गेनाइजेशन ये बर्डन सस्टेन नहीं कर सकती. द सैलरीड individuals, they are contributing somewhere like 5 to 6%, and their contribution, and although their number might run in a 700,000-800,000, but their total contribution in terms of the tax collection remain somewhere between 5 to 6%. So that's bring out a significant discussion. ये टैक्स कहाँ से आना है? How we will be collecting that money? Who is responsible, number one, to pay, and who is accountable to collect that? So it goes on both sides, or vice versa. Who is accountable to pay it and who is responsible to collect it? अगर हम अपने SME sector में जाएं तो we are looking at more than 5 million organizations or small businesses. और पहला स्टेप जो होगा वो शायद टैक्स पेमेंट नहीं होगा. पहला जो स्टेप होगा वो कंफर्ट लेवल होगा कि इस टैक्स नेट में आने से नुकसान नहीं है, फायदा है. और इस फायदे को बताने के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ACCA, ऑर्गेनाइजेशन लाइक लाहौर टैक्स बार, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करें मार्केट में, SME के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए, मीडियम साइज बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि आपकी एक कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको असिस्ट करना है. rather than we create an environment जहां पे एक threat generate हो गया हुआ है over the period. Somehow, from a credibility perspective, FBR and government both does not really enjoy that social equity, which in general any developed country can see that in among their citizens. If the government or the tax revenue collecting authority, when they come back and they ask for something, normally citizens respond to that with the assumption that they are asking for the right and fair share of the taxation, and that amount which they are asking is going to be spent on us. As a Pakistan, हमारा इकोनॉमिक मॉडल अनफॉर्चुनेटली एक विशियस सर्कल में हम लोग फंस गए हुए हैं, जहां पे कुछ 18th अमेंडमेंट्स की वजह से जो citizen services, and those are sitting with the provinces, where the major resources of the federal is being invested either on a debt servicing or it's going to the services of the defense, और बाकी pensions और उसकी साइड पे आ जाता है. That leaves a very small amount after deducting the share of the provinces, a very little amount which can be contributed towards the development one. And then we have to add up how the provinces are acting, how they are really running the agenda of education or healthcare around it. Abhi tak, or even from the services tax, which is now a domain of the provinces, how they are really running those agendas and how they are really collecting that money and how they are spending that money. All those things create or require to create an environment जहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी हो और जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बड़ी क्लियरली नजर आ रही हो. इसके लिए फेडरल साइड पे और प्रोविंशियल भी उसको सपोर्ट कर रहा है. PFM रिफॉर्म्स की बात हो रही है जहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ दोज एक्सपेंसेस और विजिबिलिटी ऑफ दोज एक्सपेंसेस कैन ब्रिंग दैट ट्रांसपेरेंसी. लेकिन अभी भी अगर हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, अभी भी अगर हम उसकी उन सारी डाटा सेट और इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी की बात करें, तो अभी तक हमें वो चीजें उतनी रोबस्ट और विजिबल नहीं नजर आ रही एज वी स्पीक टुडे. सो if we go back from a prioritization perspective, इस बजट में अगर हम जनरल सर्वे की बात करें, जो कि मार्केट में there is one survey which was conducted by one of our great friend Khurram Shehzad, and the key finding is that the top 150 leaders feel that this particular budget is not addressing the issue of economic revival. It's not addressing the issue of COVID-19 and the post-COVID-19 scenario. And we don't expect that. Under such an uncertain environment, we do expect that there will be certain changes which we will foresee or we can foresee today, जो हमें कुछ अरसे में नजर आना शुरू होंगे. इसी के साथ साथ अगर हम बिजनेस कम्युनिटी की बात करें कि is it a budget which is affecting their business adversely or positively, so general जो sentiment है वो neutral है. This budget is not significantly creating an adverse environment for the business, and neither is creating a very pro-business activity. But this budget is definitely creating or generating a lot of stimulus for the poor, particularly under the ESAS program. One way or other, there is a certain support which is going to go to the people who are at a very vulnerable stage. So, अगर हम इसको किसी भी सिनेरियो में अपने इकोनॉमिक मॉडल के साथ रिलेट करना चाहें, तो शायद इस वक्त दिस बजट डज नॉट गिव अस एन क्लियर इंडिकेशन कि वो इकोनॉमिक मॉडल क्या है गिवन द ग्लोबल सिनेरियो,
जिसके तहत ये बजट उसको सपोर्ट करेगा. But if we look at whether this budget is creating an adverse impact on the business, so certainly it's not. Is it creating a positive impact in the business? Only the businesses which are technology driven, and there are few businesses under the COVID environment who are who are growing and who are planning their growth. But most of the businesses and the larger businesses are going for the cost rationalization. So, given all those scenarios, I think I'll leave it to the panelists for their definitely expert advice to go and drill it down that how it's going to impact on the different segments. But the most important thing, the environment under which this budget is going to, or is budget is presented, we have to really understand that environment. We have to understand that uncertainty, and we do foresee there will be certain adjustment, and rightly so, not only in Pakistan, worldwide. Everybody who is providing economic stimulus packages, they are going to make some adjustment in their forecast going forward. So welcome everybody to this session, and I hope you will enjoy the conversation which we will be holding here, and Umar will be moderating those sessions. And our role is that to make sure we create a confidence within the society that compliance and the taxation is our responsibility, and we have to discharge that responsibility as a citizen. Over to you, Umar. Thank you, Sajid. Very elaborative yet very succinct. Traits of effective communication, a very good overview outlining some of the problems and challenges that the professionals continue to highlight for the government to reform. Well, it is worth pointing out here that a few years back, in fact, more than a few years back, the journey of cooperation between ACCA and Lahore Tax Bar Association started. It then went on to the stage where MOUs were signed between both the professional bodies. On one hand, ACCA is the body representing the largest number of professional accountants across the globe, with the membership more than 205,000 across the globe, as per the last figure that I checked, and Lahore Tax Bar Association being the largest bar, not just in Pakistan, but the entire South Asian region of tax practitioners. So this has been very good, with both the organization, professional bodies cooperating in the spirit of ensuring that the members of our respective associations and professional bodies would benefit from this cooperation. It has been in this spirit that the current regime of Lahore Tax Bar Association, under the leadership of Mr. Khurram Shehzad Butt, the president of Lahore Tax Bar Association, has been given extreme importance and focus on further nurturing these ties. So without any further delay, I would like to invite the co-hosts for today, the president of Lahore Tax Bar Association, a very famous name in the field of taxation, doesn't need any introduction, advocate, Lahore High Court, and a senior to many of the tax practitioners in the country. Over to you, Mr. Khurram Shehzad Butt. Shehbaz Butt. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Umar Zahir Mir Saab, for giving me an opportunity to speak today. Lahore Tax Bar Association is thankful to ACCA for conducting this webinar online together. As my learned brother has just explained, Lahore Tax Bar Association is the largest bar of Asia, which comprises of more than 6,000 members. And all of them, they are tax practitioners, and which include the chartered accountants, ACCAs, income tax practitioners, and advocates. So, ये हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि ACCA और Lahore Tax Bar Association, because we have common objects, हमारा मकसद है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, उनकी नॉलेज में को इम्प्रूव करना, और जो मसाइल हैं उसको हुकूमत तक पहुंचाना, ताकि जो फाइनेंस बिल के थ्रू अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया जाता है उसको सही तरीके से और लोगों के मसाइल को सामने रखते हुए लॉस को अमेंड किया जाए.
आज के सेमिनार में मैं वेलकम करता हूं तमाम को पैनलिस्ट का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम दोस्तों का जिन्होंने इसको लाइव सेशन को ज्वाइन किया। एंड अबव ऑल Mr. Ali Zahir Mir, who is the ACCA License Committee Chairman, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने आज के इस सेशन को पॉसिबल किया कि वो हो पाए। मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन एकेडमी नदीम भट्ट साहब का, सजीद असलम साहब हु इज द हेड ऑफ ACCA पाकिस्तान, मिस्टर कुमैल अब्बास बदामी FCCA, Muhammad Arshad FCCA, who is a senior consultant, और मैं इस जो फाइनेंस बिल 2020 से प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं उसके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, a lot has been said by my learned brother सजीद असलम, कि इस हालात में जिसमें इस बजट को दिया गया, आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे हालात कभी भी नहीं थे। मैं ये कहना चाहूंगा कि इन हालात में ये बजट सबसे बेस्ट बजट मेरी नजर में है, लेकिन कुछ कमियां और जो कोताहियां इस बजट में हैं वो अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं जो कि सेट किए गए हैं for the Federal Board of Revenue. I believe with this budget in hand, Federal Board of Revenue will not be able to uh, uh, make the collections up to the level which are expected from this budget. तो मैं फॉर्मली इन द एंड आप सबको वेलकम करता हूं आज के सेशन में, और कोशिश करेंगे कि हम इस सेशन के अंदर मिस्टर उमर जहीर मीर बीइंग द मॉडरेटर ऑफ दिस सेशन, हम अपनी जो मसाइल हैं विद रिगार्ड टू दिस फाइनेंस बिल 2020 वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक किसी तरह पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। Thank you very much, Bhatt Saab. As usual, Khurram Saab has been his elaborative self. In a brief few sentences, I think he laid out the crux of today's session and set the scene beautifully. Before going further, I would like to welcome our panelists, although Khurram Saab has been kind enough to welcome on his behalf, but a formal introduction is the norm in such sessions. So, first of all, in addition to the hosts, Khurram Shehbaz Bhatt Saab, the president of Lahore Tax Bar Association, advocate of Lahore High Court, is one of our panelists. We also have Mr. Nadeem Bhatt with us, who you can see on screens. He is the chairman of Lahore Tax Bar Association's Academy. We also are joined by Mr. Muhammad Arshad FCCA, who is the senior partner at Arshad Law Associates. We are also joined from UK by Mr. Kumail Abbas Badami, another very learned professional and a fellow chartered certified accountant who is currently the partner at Badami Law Associates. I welcome you all. Thank you so much for sparing time for our joiners today. It is worth sharing here that we have been joined by not just the members of ACCA and Lahore Tax Bar Association, but by members of other professional bodies as well. This session is concurrently running on several social media platforms, including YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, and the recording will also be available online free of any cost. So we have a large audience and we have a continuous benefit of this session that would be delivered even after the session ends. Since I'm wearing two caps of being the moderator as well as hosting the session, I guess I'll have to briefly introduce myself, though it's a bit odd introducing yourself. Anyway, Umar Zahir Mir. I'm the Managing Partner Taxation and Corporate Services at MLCC. I'm also honored to be representing Pakistan on the Global Tax Forum. And I'm the chairman of MNP, Member Network Panel and Taxation Committee of ACCA. I'm also honored to be a part of Lahore Tax Bar Association, and I'm chairing the Finance and Economic Affairs Liaison Committee of Lahore Tax Bar Association. So that's pretty much about me. I think the scene is beautifully set to start our conversations.
First of all, I would like to briefly take everyone's view on the budget 2020, particularly considering the ongoing pandemic and the global recessionary pressures. So I do appreciate, Khurram Saab, you have mentioned that in your opinion, this is perhaps one of the best budgets that has been introduced. We know there are recessionary pressures. You rightly said there has never been such situation of coronas, lockdown, all these things. However, we have been receiving some comments that nothing is perfect. There's always room for improvement. So what's your overall view? Do you think that some things might have been better? How do you view this budget, particularly considering both the tax reforms announced as well as the economic impact? So if you could just briefly share your thoughts, and we'll take everyone's opinion on this before proceeding on to more detailed questions. Over to you. थैंक यू उमर। मेरा व्यू जो इस बजट के हवाले से है, मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट एवरी ईयर उनका एक फोकल पॉइंट होता है जिसके ऊपर वो बजट को बनाया जाता है। अब आप ये देखिए कि जो मेजर इसके अंदर एम्फेसिस किया जा रहा था वो किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर। अभी इसमें लेटर ऑन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इश्यूज। मैं ये समझता हूँ कि जब भी किसी बजट को देखा जाता है उसको इस नजरिए से देखा जाता है कि क्या उसके तहत कोई नए टैक्सेस तो नहीं इम्पोज किए गए। In this context, I believe that this budget is one of the best budgets because no new taxes have been imposed. Number two, there are certain other amendments which have been brought. वो amendments मुझे तो ऐसी amendments लगती हैं जिनसे सिर्फ उसकी शेप को लेजिस्लेटिव शेप को चेंज किया गया है, अदरवाइज वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कीपिंग इन व्यू द अमेंडमेंट्स व्हिच आर प्रपोज्ड टू बी ब्रॉट थ्रू द फाइनेंस बिल 2020, होप every change is comes up through finance act as well। लेकिन मैं ये विजुअलाइज कर रहा हूं कि जितनी अमेंडमेंट्स इसमें की जा रही हैं इनसे जो टारगेट दिया गया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, विच इज ऑलमोस्ट 5.3 ट्रिलियन, ये इस बजट के साथ आने वाली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आई डोंट थिंक द टू अचीव दोस टारगेट्स। पिछले साल की निस्बत इस साल कहा गया कि टैक्स ईयर जो 2020 गुजरा उसमें इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर 17% जो है वो ग्रोथ है कलेक्शन के अंदर। आई बिलीव कि यहाँ जो अगला साल आएगा उसमें इस बजट के साथ वो जो इंक्रीज है वो बजाय इसके कि मजीद फर्दर इंक्रीज किया जाए वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। So this is my view about the budget. Taxes have been reduced. कुछ किस किस्म की चेंजेस लाई गई हैं, जैसे अगर आप देखिए तो इंपोर्ट के ऊपर क्लॉज 72B को ओमिट कर दिया गया। अब द पीपल दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट द एग्जम्पशन सर्टिफिकेट्स अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, बट एट द सेम टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज that the rate of tax collection at import stage that has been reduced। तो आप ये देखेंगे कि अल्टीमेट इम्पैक्ट में जब आप जाके देखते हैं तो आई थिंक कि टैक्स को नया नहीं लगाया गया बल्कि पहले टैक्स रेट्स को कम किया गया है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मच। Thank you, Bhatt Saab. As usual, your very elaborative usual self. So, Kumail, Bhatt Saab has said कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, no new taxes, wartime budget, no end to the wishful thinking, but best possible in these circumstances. What are your views? How do you view this budget? Thank you very much, Omar, for taking me on, and thank you to LTBA and ACCA for organizing this. Well, coming straight to the question that you've pointed out, and I think Khurram Saab has rightly said that it definitely was difficult, especially ये pandemic की वजह से काफ़ी difficulty socially, economically, politically, in every angle काफ़ी difficult था। दूसरे countries को अगर आप compare करें तो काफ़ी countries में मार्च के अंदर बजट अनाउंस हो जाता है, तो मार्च में आपको पता है कि वो पोजीशन इतनी बुरी नहीं थी, खास तौर पे पाकिस्तान की तो नहीं थी।
अब खुरम साहब ने आई थिंक बिल्कुल जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिशन सर्टिफिकेट्स की बात करी, मैं स्पेसिफिकली अगर उनको इस पॉइंट पर ये कहूँ कि बिल्कुल सही है, और आई थिंक टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए ये वर्ड कहना मुनासिब होगा कि बहुत ही बेहतर है कि एग्जामिशन सर्टिफिकेट्स की एप्लीकेशन ना करनी पड़े और कमिश्नर्स को ना चेस करना पड़े एग्जामिशन के लिए। एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए एग्जामिशन सर्टिफिकेट, जैसे कि आपको पता है कि अगर वो गुड्स में डील करते हैं तो उनको एग्जामिशन सर्टिफिकेट्स का क्लॉज मौजूद है। हालांकि वो क्लॉज में भी काफ़ी इश्यूज थे क्योंकि उसके बाद ऑडिट और वेरियस इश्यूज भी आ जाते हैं उसके अंदर, लेकिन स्पेसिफिकली इस पॉइंट पर मैं ये कहना चाहूँगा कि रेट्स तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल रिड्यूस कर दिए हैं 1% 2%, लेकिन ये चीज़ टेक्निकली कहना बहुत ही लाजिम है क्योंकि काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले लोग भी ये डेफिनेटली वेबिनार देख रहे होंगे, उनके जहन में पॉइंट होगा। और मैं एलैबोरेट कर दूं कि एक्चुअली आपको पता है कि जब इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट पे इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशंस हैं उसमें मेजर डिस्टॉर्शन होता है। उसका रीज़न ये है कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स पे कट जाता है, यानी सेल्स टैक्स के ऊपर भी आप दे रहे हैं इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी के ऊपर भी आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, प्लस कॉस्ट एंड फ्रेट पे भी दे रहे हैं। तो वो अगर आप वैल्यू निकालें और 2% भी करें तो 2% एक्चुअली नहीं, वो नॉक ऑन इफेक्ट होकर तकरीबन 3% तक चले जाता है। और टर्नओवर टैक्स की जो मैक्सिमम लिमिटेशन है वो 1.5% है। तो देन अगेन रिफंड्स क्रिएट होंगे, फिर वो इश्यूज होंगे, फिर रिफंड के लिए अप्लाई करें। आपको रिसेंटली पता है कि रिफंड्स कितनी डिफिकल्टी से गवर्नमेंट ने अभी मुश्किल से 5 बिलियन कम के रिफंड्स दिए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं ये वाली बात को भी आगे बढ़ाऊं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा इन्होंने एमनेस्टी का भी एक पॉइंट रेस किया है पहले ही, बजट से पहले ही, और क्योंकि 120 डेज पूरे होने वाले थे वरना तो वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाता, तो उन्होंने इस बजट के अंदर भी डाल दिया है, पॉसिबली एक्सेप्ट भी हो जाएगा। अब इशू ये है कि मेरे हिसाब से अनकॉमन मैन के लिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर रियली गुड, बट व्हाट अबाउट द कॉमन मैन? व्हाट अबाउट रिटेलर्स, स्मॉल रिटेलर्स, होलसेलर्स? If you look at it, we have massive population of wholesalers and retailers in the country. Who is going to cater to them? Amendments like you have to register with tier 1 retailer, which of course is not part of this budget, it was already introduced previously. If your shop is more than 1,000 square feet, now this is an extremely regressive amendment. So we have to, of course, pinpoint certain amendments which have been done by the government. I'm sure Khurram Saab, Nadeem Saab, Arshad Saab, and yourself, ACC and LTBA, will look into these things. Overall, I see the budget as a bit regressive, although there are very, very positive amendments which are duly appreciated. But I would still want the government to be more friendly towards a common man rather than an uncommon man. Thank you. Thank you, Kumail. So, Nadeem Bhatt Saab, now you are in a fix. Khurram Shahbaz Bhatt Saab, the budget is very good, best possible. Kumail, I agree to a large extent, but what about SMEs and common man? We do know you have to see the ground realities. We will be discussing these individual things later on, all these various reforms and their impact. But very quickly, how do you see this budget? मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ कुछ टैक्सेस के मैटर्स में और इश्यूज पे शेयरिंग कर सकूं। अब कमिंग टू दी क्वेश्चन जी, देखें मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है वो ये है। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल बात ठीक है कि इस वक्त इस सूरत हाल में इसी तरह का बजट हो सकता था, लेकिन अल्टीमेटली जो टारगेट है वो देखते हैं किस हद तक अचीव होते हैं। अब होना क्या है कि अल्टीमेटली बर्डन फिर वही एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर शिफ्ट होना है। वो तो इस बजट के अंदर बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है जब तक के ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं हो जाती। दूसरी बात यह है कि जितनी भी हम इस वक्त अमेंडमेंट्स व्हाटएवर वी विल शेयर विद ईच अदर, हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये अभी हम फाइनेंस बिल की बात कर रहे हैं, ये फाइनेंस एक्ट नहीं है। और आपको पता है पीछे 2 दफा प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ चुके हैं, इनको चेंज भी किया जा सकता है, रिवाइज भी किया जा सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो इट शुड नॉट बी डीम्ड एज कंक्लूसिव unless the same will form part of the act। तो पॉजिटिव है, बड़ा अच्छा है, नए टैक्सेस नहीं है, बहुत अच्छा है, टारगेट अचीव होते या नहीं होते, लेकिन वो बर्डन जो नजर आ रहा है वो एग्जिस्टिंग के ऊपर जा रहा है। और जब तक ये एक्ट का हिस्सा नहीं बन जाता तब तक हमें इसमें बहुत ज्यादा वैसे तो 90% श्योर यही होता है कि यही वाली अमेंडमेंट जो है वो लॉ का हिस्सा बनेगी।
लेकिन जब तक ये एक्चुअली एक्ट का हिस्सा नहीं बन जाती, आगे जाके एक और अमेंडमेंट आपके साथ शेयर करूंगा जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने उसको रोक दिया है, वो इंशाल्लाह ताला बाद में मैं आपसे शेयर करता हूँ। बट ओवरऑल ये बजट है बड़ा अच्छा है, बट टारगेट थोड़े से वो नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। ये मेरे पार्ट पे जो था मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। Thank you, Bhatt Sahab. So we have three opinions now. So far, it seems like the budget is perceived by experts more as towards the positive side. So Arshad, you being a senior professional, what's your opinion? How do you see this budget? Just very briefly, your overview and comments, please. Thank you, Musab. In fact, I also see in the same line that this budget is best in this kind of circumstances we are facing these days. But when we say it is best budget, then we have to see on both sides for the taxpayers and also for the economy. If we say it is a best budget from the point of view of taxpayers, then would we able to achieve those targets set in the budget for taxation? Then from FBR point of view, it might not be that best for achieving targets. But there are certain issues which are good for the businesses, and there are certain amendments which are not that good for the purpose. So we will see it in detail. It is just a budget in emergency times, and as the past experience shows, I think we will have more budget in the form of, you can say, ordinances during the year, next 30th June 2021. Thank you, Arshad Saab. So Arshad Saab is not trying to scare us. Arshad Saab, you need to mute yourself. Thank you. So we have the opinion of the experts, and there is a warning for you all. Do expect rolling budgets coming throughout the year. Let's move on to some other key issues that we can discuss. Khurram Saab, you have rightly mentioned that as no new taxes have been imposed and some stiff targets have been set, so where would we be able to achieve them? Let me put some numbers for our audience to also gauge the impact. So the total outlay for the next fiscal year has been projected at 7,132 billion rupees, whereas the total revenue is projected at 6,573 billion rupees, of which FBR share is proposed at 4,963 billion rupees, as opposed to the 39 billion rupees target for the current fiscal year. So now these numbers put things into perspective. You being a seasoned professional and someone who has been thoroughly involved with all the policy making institutions as well, being president of LTBA, do you believe, number one, this target is achievable? Number two, if yes, from where? Over to you. Thank you, Umar. In the beginning, when it was my welcome speech, I told you and the viewers कि जो amendments इस finance bill के through propose की जा रही हैं, उनके through I believe कि बजाय इसके कि tax collection बढ़े, I believe tax collection will be reduced. What I am saying is that with the amendments which have been proposed through Finance Bill 2 2020, I think the targets which have been set for the Federal Board of Revenue for the purposes of collection, that will not be possible. The basic problem I believe the Federal Board of Revenue has been facing over the years is to get new taxpayers registered with it. Now, until and unless I believe that Federal Board of Revenue does not take measures for increasing the tax base, I think that the targets will not be achieved. I have seen that through the amendments which have been proposed,
intention has been expressed by the legislature that new taxpayers should be added. अभी कुछ ऐसी amendments हैं जिनको हम later on discuss करेंगे which have an impact or intention gets expressed by the government कि intention है कि new taxpayers को add किया जाए. Until the Federal Board of Revenue officers will not come out of their cold rooms and they don't go to the taxpayer, ask them to get registered, I think it's not possible. I still remember, I had been practicing for the last 22 years. I still remember there was a circle system in Federal Board of Revenue. And suppose 30th of September is the last date of filing of tax return. And if a person doesn't file the tax return, he will not be able to achieve the self-assessment scheme benefits. 30th of September के बाद जब रात 12 बजते थे तो सुबह 10 बजे क्लर्क के थ्रू ऑफिसर की टेबल के ऊपर सेक्शन 56 के तमाम नोटिसेस अवेलेबल होते थे जो जिन लोगों ने रात 12 बजे तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की. I am visualizing something different. Making a law is something different. Achieving the target is something different. I believe with all the provisions of laws in place, until and unless the Federal Board of Revenue officers will not have the courage to get the tax collected in accordance with law, it's not possible. The officers, they are not even aware of the fact कि उनकी jurisdiction क्या है. उनको ये पता नहीं है कि उनकी jurisdiction में कितने officers हैं. If you read section 209 of the income tax ordinance, it says कि jurisdiction होगी officers की in respect of the businesses जो उनकी jurisdiction में conduct हो रहे हैं. How many of the officers of Federal Board of Revenue know कि उनकी jurisdiction के अंदर कितने businesses हैं जो काम कर रहे हैं? Despite the fact कि IT system ने information को इतना improve कर दिया है, IRS system ने इस चीज को इतना improve कर दिया है, I don't think जो intent है Federal Board of Revenue की, brother, हम जितनी मर्जी इसमें amendments ले आए, जितनी मर्जी positive amendments ले आए, जब तक ऑफिसर की इंटेंट उस टैक्स कलेक्शन की नहीं होगी उस वक्त तक पाए. इस बजट के थ्रू प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो की गई हैं, इंटेंट हैज बीन शोन टू इंक्रीज द टैक्स बेस, बट अगेन आई विल कम बैक टू व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग के सेंस ऑफ their responsibility in the officer until it will not improve, will not be able to achieve the tax targets. Thank you. Very, very well said. और बड़ा आपने खुल के बात की. We appreciate that. So continuing this discussion, Nadeem Saab, Bhatt Saab is very right. We all know the culture at FBR. It's an open secret. It's not hidden from either the taxpayer or the practitioners. Now the issue is this: what will motivate the officers to go out and broaden the tax base? We know there was a BTB division, then it was abolished, then it was recreated. It's been done several times over the years. The result has been same. And I would like you to answer that in the context of the challenge of the lack of faith, the right or wrong, the impression of harassment from the department, which put off businesses who are not willing to enter the tax net. So while we have this challenge of public perception on one hand and the lack of incentive for the FBR officials to broaden the tax base, how is that going to happen? Over to you, Nadeem sir. You need to unmute yourself. जी अच्छा, अब क्वेश्चन तो बड़ा वैलिड है जी, बिल्कुल. ये तो कोई आज की बात है नहीं. मुझे भी 25 इयर्स हो गए क्वालिफाई किए हुए. देखते देखते हम लोग यहाँ तक पहुंचे. जैसे शुरू में कहा और सब लोगों को पता है कि अभी अगर एनटीएन होल्डर अगर आप नोट करें तो अगर टोटल 50 लाख एनटीएन होल्डर है तो रिटर्न सारी आपकी 26 लाख, 25 लाख, 28 लाख तक पहुंची है.
अभी तक तो हम लोग उन लोगों को नहीं बीच में ला सके जिनके पास एनटीएन है, वो इसके अंदर नेट के अंदर नहीं आ सके। अब क्वेश्चन ये है कि जब तक देखें कंपैरिजन अगर आपने डेवलप्ड कंट्री से करना है तो पहले तो आप अपना सिस्टम इक्वल फुटिंग पे अप्लाई करें। आपको ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस तो करना ही पड़ेगा। देखें अब ये सेंटेंस तो थोड़ा हार्श है, लेकिन चूंकि सच है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि आप एसी के कमरे में बैठ के लोगों को उनकी असेसमेंट तो आप कर सकते हैं रिकॉर्ड देख के। अब जिसने बनाया है, जो लेके आया है, जिसने ऑडिट किया है, जिसने सर्टिफिकेशन की है, जिसने बैकिंग फोटोकॉपीज करवाई है, जिसने लॉ को पढ़ा है, वो सारा तैयार करके ला के आपकी टेबल के ऊपर रख देता है। सवाल यह कि अगर सारा कुछ उसी में से निकालना है तो फिर तो पीछे कुछ रह ही नहीं जाता। मजा तो तब है कि आप अगले के मैदान में जाके लड़े ना जी, लोगों को लेकर आए और लेके उसको नेट के अंदर। अब क्या करते हैं, एटीएल नॉन एटीएल कर दिया, पहले फाइलर नॉन फाइलर था, अब आपने एक और लिमिटेशन लगा दी है कि जी जो लोग रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है, एक नई चीज, एक नया शोशा छोड़ दिया आपने। अब मुझे कैसे पता कि एक बंदे को रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है? ये एक लीगल पॉइंट है, वो एक अलग बहस चलेगी। अब सवाल ये है कि आप कहते हैं जी बैठे बिठाए आपको सारा टैक्स जो है कलेक्ट हो जाए। अब विदहोल्डिंग टैक्सेस को देख ले, 80% से ज्यादा टैक्स आपका इनकम टैक्स विदहोल्डिंग टैक्सेस से इकट्ठा हो जाता है, तो बाकी 20% बचा, वो आप ऑडिट करें, अमेंडमेंट इन असेसमेंट करें, रेक्टिफिकेशन करें, 161(205) का कर दे विदहोल्डिंग का, तो बड़े आराम से टारगेट आपका अचीव हो जाता है। सवाल ये है इस मुल्क को कब तक हम लोन्स पे, मार्कअप पे और एड पे चलाएंगे? जब तक हम अपने टैक्स नेट को ब्रॉड नहीं कर लेते। देखिए टैक्स नेट ब्रॉड, आप थोड़े लोगों से ज्यादा पैसा नहीं कलेक्ट कर सकते रेट ज्यादा करके, लेकिन ज्यादा लोगों से रेट कम करके आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज फॉर श्योर। आज अगर आप 26 लाख एनटीएन होल्डर की बात कर रहे हैं, आप इसको 1 करोड़ पे जब लेके जाएंगे तो सोचिए आपको जो रेवेन्यू है वो कैसे आपकी तरफ फ्लो करेगा, एक बात। और दूसरी बात ये है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और लोगों को डेट में लाने के लिए फिर अल्टीमेटली आपको उनके साथ कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि आप उसको बेनिफिट भी पास ऑन करेंगे। जैसे कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, सिर्फ कलेक्शन साइड ना देखें, उसको उस साइड पे भी देखेंगे जो दे रहा है। अब जितने क्लाइंट हमारे पास आते हैं, एक सेंटेंस हमसे बोलते हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। वो कहता है जी मैं 10 लाख के बदले 1 करोड़ टैक्स देने को तैयार हूं, मुझे ये बताएं आप मुझे बेनिफिट क्या देंगे? अब मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मुश्किल हो जाता हमें कंपनसेट करना कि भाई यहाँ तुम बिजनेस कर सकते हो, पाकिस्तान में रह सकते हो, लेकिन बहरहाल फिर भी कन्विंस हम लोगों को यही करते हैं भाई टैक्स दो, लेकिन उसको आगे बदले में क्या? अब इनकम टैक्स एक बंदा पे करता है, आप डायरेक्टली उसको बेनिफिट क्या देते हैं? एक सवाल है, क्या फूड क्लोथिंग में कोई बेनिफिट है? क्या मेडिकल में कोई बेनिफिट है? क्या एजुकेशन में कोई बेनिफिट है? ट्रैवलिंग में कोई बेनिफिट है? वो फाइलर नॉन फाइलर को ना बताइएगा, वो एटीएल नोटी एटीएल की बात नहीं हो रही, वो तो उनके लिए जो रिटर्न फाइल करते हैं नहीं करते, एक में रेट ज्यादा हो जाएगा, एक में कम हो जाएगा, वो बेनिफिट नहीं है जनाब, वो लिमिटेशन है बेसिकली। तो टैक्स जो एक्चुअली मैं पेड करूंगा उसके बदले में आप मुझे क्या पे करेंगे एज कंपनसेशन क्या होगी? बाहर मेरे कितने जानने वाले हैं वो 65%, 70% टैक्स लोग टैक्स पे करते हैं, लेकिन कंपनसेशन उनको क्या मिलती है? 90% कंपनसेशन है। मैंने कहा भाई टैक्स तुम्हें छोड़ दें तो क्या तुम बाहर वाले पे करोगे? वो कहते हैं जी बिल्कुल पे करेंगे, मैंने 65 टैक्स देना है, मुझे 90 वापस आएगा। आपके यहाँ क्या है? अगर एक बंदा 1%, 10%, 20%, 30% कुछ भी पे करेगा, रिटर्न में क्या है उसके लिए? गुड्स में तो चले आप क्या देते हैं ना जी सेल टैक्स में कि जी आपको गुड्स मिली है, आप इनकम टैक्स में क्या उसको रिटर्न कर रहे हैं? तो दोनों तरफ से मैं इवन हम फिर भी हम कहते हैं नहीं भाई टैक्स चाहिए हमें, फिर भी लोगों को कहते हैं नहीं भाई दो टैक्स पे करो, मुल्क को चलाना है, टैक्स पे करना है। तो बात यह है कि दोनों तरफ है। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स पे जैसे पॉइंट ऑफ सेल है, आपको पता है बड़ा स्ट्रिक्टली उस पर इंप्लीमेंटेशन होनी है। इन्होंने बिजनेस को क्लोज डाउन कर ले, उन्होंने कहा पहले पेनल्टी लगेगी अगर आप 2 महीने के अंदर अपने पॉइंट ऑफ सेल को रजिस्टर नहीं करवाएंगे, वो सील्ड कर देंगे जनाब। अब पेनल्टी नहीं लगेगी, वो सील्ड हो जाएगा सिस्टम, तो पॉइंट ऑफ सेल बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप लोगों को कंपनसेट भी करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। और दूसरा जब देखें मैं अगर टैक्सेशन ऑफिसर हूं, वो भी हमारे भाई है, खाली क्रिटिसिज्म करना नहीं होता। मुझे पीछे से प्रेशर आएगा इतने करोड़ पे इकट्ठे करके दो, तो मैं क्या करूंगा? जो मुझे समझ आएगा उल्टी सीधी करके असेसमेंट में करके आपको पकड़ा दूंगा। और मोस्ट ऑफ दी असेसमेंट का हाल आप देख लें, वो पहली नहीं तो दूसरी अपील में वो 0 हो जाता है। तो कलेक्ट तो फिर कुछ ना हुआ, आपको असेसमेंट करना पर्पज नहीं है, सही असेसमेंट करना लाजमी है। तो जब तक दोनों ही मिलके इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं सोचेंगे, चाहे वो टैक्स पेयर है, चाहे वो टैक्स कंसल्टेंट है,
चाहे वो रिकवरी डिपार्टमेंट है, उसके बगैर ब्रॉडनिंग के अलावा देखिए मुझे कोई चीज नजर नहीं आती है। जो मर्जी आप कर लें, आप कभी ये पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। और एक और चीज मैं ऐड करता चलूं, आपने लोगों को लॉ ने चोर रास्ता खुद दिया हुआ है, मैं आपको दे देता हूं। 111(4) आप सेक्शन खोले, वो खुद ये कहता है कि आप ब्लैक मनी को वाइट कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान में 10% का रेट चलता है जो टीटी बार से लगती है, लोग पैसे लेकर आते हैं, इनकैशमेंट का सर्टिफिकेट देना होता है और एक बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा आता है। इस वक्त 50 लाख रुपए लिमिट है, जो पहले अनलिमिटेड होती थी, फिर ये 1 करोड़ हुई पिछले साल, और अब ये 50 लाख की लिमिट है कि एक बंदा एक साल में 50 लाख रुपए ब्लैक मनी वाइट कर सकता है पाकिस्तान में। तो जब मुझे आप दे रहे हैं 10% पे एक चीज मुझे वाइट हो जानी है, मुझे एक चीज बताएं, तो 25% टैक्स, फिर मैं ऑडिट भी कराऊं, विद होल्डिंग टैक्स भी दूं, सेल टैक्स भी दूं, बुक्स भी मेंटेन करूं, कंसल्टेंट को पैसे भी दूं, ऑडिट भी कराऊं, तो सब कुछ खत्म करके मैं 10% पे करता हूं एंड थैंक यू वेरी मच, मैं घर चला जाता हूं। So rationalization of laws is required. वो भी बहुत जरूरी है। आपको नंबर से कुछ नहीं होता जी, नंबर से नहीं है, आप नंबर की गेम नहीं है। क्वेश्चन ये है कि टैक्सेस, जैसे अभी सरजील साहब ने शुरू में कहा कि वो 300 लोग ही हैं जो टैक्स बेसिकली पे कर रहे हैं, तो कब तक आप 99% लोगों का बोझ 1% लोगों पे डालें, वो नहीं हो सकेगा, कोलैप्स होगा। बल्कि भट्ट साहब की बात को मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा, ये अल्टीमेटली क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग होगा वो भी भाग जाएगा। आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो जो चोर रास्ते हैं उसको यूज करे, आप बेनिफिट पास ऑन करें। हम इसको डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स कंटिन्यू दिस। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा इलेबोरेट किया और आई थिंक बहुत फ्रैंक डिस्कशन की। जो बातें लोग बंद कमरों में या अपने कंसल्टेंट से या लॉयर्स से करते हैं वो आपने ओपन एयर पे कर दी, एंड आई होप आपके एफबीआर के दोस्त ज्यादा नाराज ना हो आपसे, क्योंकि कई उनमें से भी देख रहे होंगे। ओवर टू यू कुमेल साहब। सो what is the rate of tax you are paying, effective rate of tax on your UK income? थैंक यू वेरी मच। आपने सवाल पूछा, मैं जब आपको इंशाल्लाह आपको जब हायर करूंगा मेरा टैक्स रिटर्न के लिए तो बता दूंगा। जवाब तो आपका जब मिलेगा तो मैंने सवाल पूछना है ना। बेसिकली अभी भट्ट साहब ने कहा कि 65 से 70% तक हमारे ओवरसीज भाई अपनी इनकम पे इफेक्टिव टैक्स पे कर रहे हैं, आपका इसी रेंज के आसपास है? देखिए, मैं आपको ऑफ कोर्स इस सवाल का जवाब को गुल करने के लिए एक ही बात कर सकता हूँ कि बिल्कुल पॉजिटिवली दोनों मेंबर्स ने, सीनियर मेंबर्स ने, नदीम साहब ने, खुरम साहब ने जो पॉइंट आउट किया है, इसमें मेरा ख्याल है मजीद ऐड करके मैं कोई वक्त की बर्बादी नहीं करूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट्स इन्होंने कहे, they are extremely valid and I just hope that someone at FBR is actually listening to them, क्योंकि उन्होंने बॉटम लाइन बातें कर दी हैं। लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक सी 1-2 चीज़ें कह देता हूँ, फिर आप अपने अगले सवाल पे आ जाइएगा। देखिए, इंटरनेशनली जैसे फॉर एग्जांपल यूके में फर्लो का सिस्टम है। फर्लो सिस्टम में ये हुआ कि गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग पेंडेमिक लोगों को सपोर्ट किया। अब आप मुझे ये बताएं कि जब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के मिसाल लूँ, मिस्टर ए है, उनको अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है 3 मंथ्स में, सपोर्ट आप हैरान होंगे, ना सिर्फ आपको सैलरी अप टू 2500 पाउंड्स तक गवर्नमेंट ने दी है, बल्कि नेशनल इंश्योरेंस आपका, और इसके अलावा टैक्स भी जो है वो आपका गवर्नमेंट ने आपको पास ऑन करके कह दिया कि आप वापस हमें दे दो। अब मुझे आप बताएं कि अगर आपको किसी से ट्रस्ट लेवल बिल्ड करना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी क्लाइंट के साथ भी, किसी के साथ भी, अपने एम्प्लॉय के साथ भी, अपने घर वालों के साथ, अपने ड्राइवर के साथ, अपने किसी भी वर्कर के साथ, तो आप पहले उसको एक सिस्टम पे लेकर आते हैं, उसको आप ट्रस्ट लेवल बिल्ड करके आप उसको समझाते हैं, उसके घरेलू इश्यूज या उसके कोई दुखती रग होगी जिस पे आप काम करके उससे ट्रस्ट गेन करते हैं कि देखें, मैं आपके पैसे के पीछे नहीं आ रहा हूँ, मुझे आपकी ज़िंदगी, आपका लाइफस्टाइल, आपके बच्चे, आपकी फैमिली ज़्यादा ज़रूरी है। ये बातें गवर्नमेंट ने इसलिए क्यों की, आप मुझे बताएं। क्या इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो है वो क्या इन चीज़ों को नहीं समझती है कि 9 बिलियन पाउंड्स खर्च करके ये वसूल कैसे करने हैं? हम और आपसे ज़्यादा तेज़ हैं ये लोग। ये तो मुश्किल से 1 महीने में ही, 3 महीने में ही क्लेम कर लेंगे। कैसे क्लेम करेंगे? एक मरतबा ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो गया, उसके बाद मेरी इनकम अगर 3-4 हज़ार होगी तो मैं वो पूरी दिखाऊंगा। उमर, ये नदीम साहब, खुरम साहब, अरशद साहब रियलाइज़ करेंगे कि जब एक मरतबा गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी तो मैं कहूँगा कि यार, जब मुझे बुरे टाइम पे किसी ने सपोर्ट किया है
तो मेरे अच्छे टाइम पे मैं थोड़ा बहुत टैक्स एक्स्ट्रा भी भर दूं, क्योंकि ये बैक एंड पे मुझे 1-2 साल बाद खुदा ना खासा कुछ वापस आया तो मुझे सपोर्ट करेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये लाजिम है। जो इन्होंने पॉइंट का मैंने सिर्फ मिसाल इंटरनेशनल दे के इनके पॉइंट को सिर्फ पुख्ता किया है। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको ऑडिट रिडक्शंस, आप रजिस्ट्रेशन शुरू में ऐसी ओपन कर दें कि शुरू के 2-3 साल में कोई टर्नओवर टैक्स नहीं है, कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है, कोई ऑडिट्स नहीं है, ताकि हम जैसे लोगों को जब क्लाइंट सवाल पूछे, एक नया टैक्स पेयर सवाल, सबसे डिफिकल्ट सवाल आपको पता है हमारे लिए क्या होता है? मतलब मेरे लिए तो बहुत सारे होते हैं, फिर मैं अपने सीनियर मेंबर्स जैसे खुरम साहब और अरशद साहब वगैरह से रेफर करता हूँ, लेकिन वैसे जो सबसे मुश्किल सवाल है जिसका जवाब मेरे पास मौजूद नहीं होता, वो ये होता है कि ये मुझे बताएं कि मुझे रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए कि नहीं। इसका सवाल ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में लिखा है, ना सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में लिखा है। लीगली तो लिखा है, प्रैक्टिकली नहीं लिखा हुआ, क्योंकि आप अगर हाँ कहेंगे तो भी फंस गए, ना कहेंगे तो भी फंस गए। अब आप उसको कन्विंस करने के लिए कुछ तो पॉइंटर्स दें कि देखें शुरू के 2 साल टर्नओवर टैक्स नहीं लगेगा, शुरू के 2 साल ऑडिट्स नहीं होंगे, शुरू के 2 साल आपका सेल्स टैक्स रेट फॉर एग्जांपल रिडक्शन रहेगा। मैं तो बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, विदहोल्डिंग टैक्स ऑडिट्स नहीं होंगे, सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग ऑडिट्स नहीं होंगे, 161(205) नहीं होगा, 122(5A) नहीं होगा, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की जो असेसमेंट हो जाती है उल्टी सीधी वो नहीं होगा। इतनी चीजें हैं जो कि आप लोगों को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। You have to give something. If you expect that you come on stage and say to people, give us tax, nobody is going to give you tax. It's a two-way traffic. You have to ताली दो हाथ से बजती है। तो ये pointers मैंने सिर्फ example से आगे point out कर दिए। Thank you. Okay, before I ask the question, Khurram Shehbaz Bhatt sahab want to add something. So, Bhatt sahab. In fact, Umar Saab, when Nadeem Bhatt Saab was saying something about the section 1114 of the income tax ordinance, at that point in time, I wanted to add something. उसमें एक एडिशन मैं ये करना चाहता हूं कि सेक्शन 1114 की जहां तक बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, तो मैं वहां सिर्फ ये कह रहा था कि वहां 50 लाख की लिमिट है कि क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा जाएगा। 50 लाख से अगर ऊपर चला जाएगा, then you will be asked about the nature and source of that foreign remittance. सेक्शन 111 सब सेक्शन 4 के अंदर जो क्लॉक 50 लाख का है वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के हवाले से है। फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में 50 लाख से ऊपर नहीं आ सकती, ऐसा कोई क्लॉक नहीं है। आप अरबों रुपए पाकिस्तान में ला सकते हैं, कोई शख्स आपको उसको पाकिस्तान में लाने से नहीं रोक सकता। This was just an addition to what my learned brother was saying. Very well said. However, we must also appreciate that this has been an improvement. I mean, but sir, we all know for years there was no limit. I mean, you could bring any amount and nothing was asked. At least it's a step in the right direction. And I know Tax Bar, ACCA, even we have jointly sent these proposals to the government to at least start asking people the source. So now that this limit has been proposed, hopefully we'll see this going further step by step in future. But yeah, very good clarification. Thanks for that. So Arshad Saab, अब बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने तो सारी वही बातें कर दी जो मैं अपने आर्टिकल्स में भी लिखता हूँ, आप भी करते हैं। तो अब बीइंग द डेविल्स एडवोकेट मैं दूसरी साइड की आर्ग्यूमेंट आपको पुट करता हूँ ताकि आप उसका जवाब दें। So Arshad Saab, it's like मुर्गी और अंडे वाली कहानी है कि टैक्स पेयर सेज एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय आवर पैनलिस्ट कि मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा, कुछ होगा तो मैं टैक्स दूंगा। हुकूमत कहती है जिन मुल्कों का आप मुआवजा करवाते हैं उनकी इकोनॉमीज 9 टाइम 10 टाइम 20 टाइम्स है, तो उस लेवल तक हम पहुंचेंगे तो करेंगे। अभी तो वो जैसे बड़ा अच्छा एनालिसिस मेरे लर्नेड कोलीग स्पेशली खुरम भाई जो है वो दे रहे थे कि सारा कुछ बजट में से निकाल के आपके पास वो एक हमारा उर्दू में मुहावरा होता है, इफ आई में टेक द लिबर्टी, गंजी नहाएगी क्या निचोड़ेगी क्या, आपके पास बचता क्या है? ठीक है, जो आप ये सारी चीजें करें, कलेक्शन आपकी होती नहीं है, डिफिसिट का आपका बजट हो रहा होता है, टैक्स बेस इंक्रीज नहीं हो रही, तो अब ये मुर्गी अंडे वाली लड़ाई में कौन जीतेगा और कैसे? टैक्स पेयर कहता है पहले बेनिफिट दो फिर मैं नेट में आना शुरू करूंगा, हुकूमत कहती है पहले आओ आके पैसा दो फिर हम कोई बेनिफिट दें। तो आप माशाल्लाह काफी सीजन बंदे हैं, बीइंग अ लर्नेड पर्सन, आपका क्या ख्याल है कि इसका एक लॉजिकल हल क्या हो सकता है? ओवर टू यू, अपना अनम्यूट कीजिएगा।
जी थैंक यू। ये बात बिल्कुल ठीक है कि टैक्स पेयर यही चाहता है कि उसको भी कुछ बेनिफिट मिले, और ये कोई अनएक्सपेक्टेड या कोई अनरीजनेबल बात नहीं है, उसको मिलना चाहिए। इसका एक तरीका ये हो सकता है, एक प्रपोजल है बल्कि, कि जैसे टैक्स पेयर्स ख़ास तौर पे इंडस्ट्रीज़ जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, इस तरह के जो लोग हैं, वो वर्कर्स वेलफेयर फंड और WWF भी तकसीम करते हैं। WWF तो खैर फेडरल गवर्नमेंट को चला गया, वो प्रोविंसेस के पास जा रहा है। तो इस तरह का अगर आप एक सोशल सिक्योरिटी का 1% कर लें या 2% कर लें, इनिशियली से 1% कर लें, उसको ऐड कर लें, बेशक वो टैक्स पेयर ही दे, बट जब उसके पे कोई बुरा वक्त आता है तो उसको उसमें से दिया जाए। जैसे आजकल था, कोई पेंडेमिक आ गई तो उसमें इसको किया जा सकता है। अगर बिजनेस को कोई अदरवाइज किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन के लिए कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसमें से दिया जा सके। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नहीं की जा सकती। जिस तरह के इंग्लैंड में शायद वो सोशल सिक्योरिटी वाला सिस्टम है, तो इस तरह का यहाँ पे भी किया जा सकता है। इसमें टैक्स पेयर पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको ये पता होगा उस टैक्स पेयर को कि अगर कल को कोई खराबी उसके बिजनेस में आती है, उसका कोई मुश्किल वक्त आता है, तो FBR या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर दैट मैटर विल हेल्प हिम आउट। तो मेरे ख्याल में ये इसको किया जा सकता है। ऐसी कोई वो बात नहीं है कि जी पहले टैक्स कलेक्शन इतनी हो तो तभी हम कर सकेंगे। इट इज़ फ्रॉम द टैक्स पेयर। आपने सुपर टैक्स भी तो लगा दिया ना लोगों पे कि जी ये रिहेबिलिटेशन के लिए है, तो वो ठीक है लगा दिया, बट उसकी लिमिट अब 2015 से लेकर आज तक वो चल रहा है। तो टैक्स पेयर्स के लिए भी तो ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और उनके लिए ये हो कि जी गवर्नमेंट उनके साथ है, उनके लिए सारा कुछ कर रही है। तो ये एक प्रपोजल होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में खुर्रम साहब और दूसरे हमारे जो लोग हैं तो उनको ये प्रमोट भी, ये प्रपोजल फ्लोट करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, आप काइंडली दोबारा म्यूट कर लीजिए। Great. So, our learned panelists have been discussing the various aspects of the structural reform. Before going on to the next question, I would like to share with you what we have proposed from ACCS Taxation Committee and as part of Lahore Tax Bar's budget proposals too. One way that can be highly effective is structural reforms, along with undoing with the excessive subjective powers. So, for example, I won't name the finance minister because we have to remain apolitical and neutral. But there was a finance minister, and Khurram Sahib Smile has told me he already is recalling who I am about to refer to. During that finance minister's tenure, our tax revenue collection and number of taxpayer expanded exponentially. And he didn't have a magic stick. He didn't do anything out of the box. Hell, Arshad Saab, he didn't even do what you are saying. So he didn't even give that benefit to the people. So what was the magic trick? We had this discussion. We sat on a think tank together, myself and him. And we were having this discussion that the root cause was that he did away with the harassment thing. He announced the universal self-assessment that, okay, whatever you believe is your tax, file that, and year after year, do this much increase, and nobody will come knocking at your door. And that was the only time in our history when the tax revenue actually grew in real terms, adjusted for inflation. वैसे तो हम कर देते हैं हर साल इन्फ्लेशन डाल के कि हमारी ग्रो हो गई है, बट दैट वाज परहैप्स द ओनली टाइम व्हेन वी हैड द रियल ग्रोथ. एंड ये मैंने पर्सनली भी देखा हुआ है कि आप सब भी इससे एग्री करेंगे कि क्या बेनिफिट मिलता है, ये ज्यादातर सैलरीड क्लास वगैरह की तरफ से आता है. जो बिजनेसमैन है वो तो बेचारा कहता है बेनिफिट भी मैं खुद ही ले लूंगा, आप सिर्फ मुझे इतनी अश्योरेंस दे दें कि मुझे कोई हैरेसमेंट नहीं होगी, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कम विद इन द टैक्स नेट. सो शायद हम ज्वाइंटली इसके लिए आवाज उठा सकते हैं कि जो हमारा पूरा टैक्स लॉ है उसके एक रिव्यू की जरूरत है, कि जो सब्जेक्टिव पावर है उनको अगर रिड्यूस करके एक ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्रिएट करें तो उससे भी बड़ी हद तक जो कहते हैं ना मर्ज में अफाका होगा. With that, over to the next question.
we have discussed about the tax reforms, etc. So, continuing from this discussion, let's discuss some moves that have been discussed and proposed within this finance bill. And this question is coming for you, Khurram Shahbaz Bhatt sir. There has been a proposal that whenever you would need to file an appeal to appellate tribunal, which is the first independent judicial forum, one will need to file to deposit the 10% demand with the FBR, with the exchequer, just to have the right for the appeal. So my question to you, being an advocate too, is, isn't that the violation of the constitutional right, number one? Number two, if FBR or the tax machinery is confident that they are doing the right thing, why are they selling this narrative to the government, to the finance ministry, that look, we need to do this to meet our targets, and discourage people from going into litigation, whereas the system actually requires, Bhatt sir, that people should have the right to get the assessment checked from an independent forum. Otherwise, the subjective powers we have, you know that, I have experienced this. If the officer is upset with the taxpayer, he can write any assessment, and there is actually no answer, no accountability for that. Even if we get that assessment nullified from a forum, there is no fallback on that. So in view of this, do you think this step is a step in right direction, or like Kumail said, a regressive measure? If this is a regressive measure, what is the thought process? Why is FBR even getting these proposals through? Over to you. Thank you, Umar. आपकी तवज्जो सेक्शन 127 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की तरफ है. एक जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं इस फाइनेंस बिल के थ्रू, उसमें पहली जो अपील से रिलेटेड अमेंडमेंट है वो ये है कि जो रेट ऑफ अपील फाइलिंग फी है दैट हैज इंक्रीज. नंबर वन, आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव थिंग. 1,000 रुपया अपील फाइल करने की फीस हुआ करती थी, चलिए उसको 5,000 और 2,500 दो किस्म की कैटेगरीज में कर दिया गया. लेकिन जिस अमेंडमेंट की तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सेकंड अपील फाइल करेंगे तो अंडर कंपल्शन आपको 10% of the disputed tax demand that has to be deposited along with the appeal filing fee for filing that appeal before the appellate tribunal. मैं अर्ज यहाँ पे करूंगा कि कुछ अरसे पहले, कुछ ही दिनों पहले जब हमारा एक पोस्ट बजट सेमिनार आया, उसके अंदर यही सवाल आए placed before the chairman Federal Board of Revenue and asked the question कि जब ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ हो चुका है कि जब तक कोई एक डिमांड until it has gone through the test of appeals और एक इंडिपेंडेंट फोरम आउटसाइड द टैक्स हायरार्की उसको जज नहीं कर देती, आप होल्ड नहीं कर देती, आप टैक्स रिकवरी ही नहीं कर सकते. These are the principle which have been settled. उसमें दो बड़ी नोन जजमेंट्स हैं, एक ZN एक्सपोर्ट्स की जजमेंट है, एक सनराइज बॉटलिंग की जजमेंट है. उसमें कोर्ट्स ने कहा, मैं अपने नाज़रीन के लिए बता दूं, 1/2003 PT-D 1746 जो ZN एक्सपोर्ट्स की जजमेंट है, जब ये प्रिंसिपल सेटल हो गया, नंबर वन, कि until a thing has not been decided by a forum outside the tax hierarchy, क्या ये 10% की शर्त लगाई जा सकती थी? दूसरी बात, इससे पहले भी ये अमेंडमेंट एक दफा स्टैट्यूट में आ चुकी है. जब वो अमेंडमेंट इलीगल करार दिए जाने वाली थी तो वो अमेंडमेंट को डिलीट कर दिया गया. मैं आज ये वैसे मेरे जहन में ये आ रहा है और किसी ने मुझे बताया भी कि ये जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई है ये अप्रूव नहीं हो पाई. ये अभी तक की खबर ये है. तो मैं ये समझता हूं कि किसी शख्स को उसका राइट ऑफ अपील स्नैच कर लेना, मेरा ख्याल से जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि हाउ विल द बजटरी टारगेट्स विल बी अचीव्ड, मैं समझता हूँ कि ये शायद इस तरीके से अचीव किए जाएंगे. नीचे ऑफिसर को कहा जाएगा कि आप 100 रुपया टैक्स लगता है, 500 रुपया लगाएं. सीआर अपील को कहा जाएगा इसको 200 का रिलीफ देना, इससे ऊपर नहीं देना, और फिर उन 300 रुपए का 10% 30 रुपए जमा होगा
तो रेवेन्यू टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूं कि अगर यही सवाल मैंने उनसे पूछा, मेरा ख्याल है और मुझे उम्मीद है कि ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट के टेस्ट से नहीं गुजर पाएगी, और इफ दिस क्लॉक विल बी प्लेस्ड अपॉन फाइलिंग ऑफ अपील, आई हैव 2 to 3 जजमेंट्स इन हैंड। मैं उस दिन देख रहा था और उनको मैंने शेयर भी किया, जिसमें ऐसी अमेंडमेंट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। मैं वो 2 जजमेंट्स भी इन द एंड आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो I don't think it's a wise proposed amendment in the income tax ordinance. How can a person, before filing an appeal before the appellate tribunal, deposit 10% of the disputed tax demand at the very outset to get the legal benefit जो अपील की सूरत में उसको अवेलेबल है? तो you have rightly pointed out this is not a logical amendment proposed, and I think that this will not be passed by the parliament. Thank you. Great. Thank you, Bhatt साहब. Very detailed and elaborative answer and very thought provoking. माशाल्लाह आपने सारी aspects इसमें almost cover कर दी खुद से. नदीम भट्ट साहब ने जैसे इसका अच्छी तरह एनालिसिस किया है, तो ये हमारे जो दोस्त हैं FBR पे ये ऐसी मजे की प्रपोजल्स इंट्रोड्यूस क्यों करते हैं? आखिर अचीव क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि इस पे 2-3 भट्ट साहब ने जो ऐड किया वो तो कर दिया, मैं उसमें मजीद 1-2 पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। देखिए, इस वक्त क्या है, अगर आप कमिश्नर अपील्स के पास जाते हैं पहली अपील में, तो अगर आप स्टे लेना चाहते हैं तो आप उसका 10% जमा करवा दें, जब तक उसके बगैर भी है, जरूरी नहीं कि आप पेमेंट ही करेंगे, आप पेमेंट के बगैर भी स्टे ले सकते हैं अगर आपके ग्राउंड्स बड़े मजबूत हैं। तो मैंने कितनी दफा लिया, कोई पेमेंट नहीं हमने जमा करवाई, ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। विद या विदाउट 10% कमिश्नर अपील से स्टे लेना। अब आ जाए ट्रिब्यूनल की स्टेज पे। पहली बात तो ये क्यों हो रहा है, इसकी रीजन 2 मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये भट्ट साहब ने बिल्कुल कहा, ये मैंने भी ऐड करना था, अच्छा हुआ भट्ट साहब ने ऐड कर दिया कि राइट ऑफ अपील आप एक बंदे से कैसे छीन सकते हैं। जबकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब मैं फर्ज करें अभी ये 10% नहीं है, मैं अपील फाइल करता हूं, आपको पता है अपील फाइल करने के बावजूद टैक्स डिपार्टमेंट आपसे रिकवरी कर सकता है जब तक कि आप स्टे नहीं लेते। और स्टे आपको ऐसे नहीं मिल जाता, आपको रैशनैलिटी प्रेजेंट करनी पड़ती है कि जनाब ये डिमांड अनलॉफुल है या लॉजिकल नहीं है या बेसलेस है, उसके बगैर वो आपको स्टे भी नहीं देते। अब अगर आपको स्टे रिजेक्ट हो जाता है तो डिपार्टमेंट आपसे फैसला होने से पहले 30 डेज के बाद या जो स्पेसिफाइड टाइम है, इवन के अगर आप स्टे नहीं लेते तो उससे पहले वो आपसे रिकवरी कर सकता है। तो 10% क्या जनाब आप पूरा ही ले हमसे, मसला क्या है? अगर एक बंदे को स्टे नहीं मिलता है, आपका तो राइट कोर्ट ने पहले ही प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर एक बंदे को स्टे ही नहीं मिलता, आप 10% छोड़े, आप सारे ही ले हमसे, तो स्टे पे ही आधे से ज्यादा फैसला क्या 100% फैसला आपका स्टे पे ही हो जाता है। इफ यू विल गेट द स्टे, इसका मतलब है कि जजेस आर कन्विंस्ड विद द लॉजिकल एंड लीगल आंसर प्रेजेंटेड बाय द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, नंबर 1। अब मैं आता हूं दूसरी साइड पे, आप जरा थोड़ा पीछे चले जाएं, ये पीछे जाना बहुत जरूरी है। जैसे ही कोई चीज टैक्स पेयर की फेवर में आती है, उधर से एक जजमेंट लॉ अमेंड हो जाता है। आप सीएनजी स्टेशन को देखें, बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह हाई कोर्ट की जजमेंट अवेलेबल है, एग्जैक्टली इसी तरह कि आप हाई कोर्ट जो सीएनजी वाले हैं 4% ऑफ द गैस बिल वो टैक्स पे करेंगे और बाकी जो अदरवाइज टैक्सेस हैं वो उसका वो रिफंड लेंगे। अब क्वाइट इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, लॉ अमेंड हो गया, उसके अंदर लिखा गया कि आप सीएनजी के अलावा जो बिजली का जो मेन टैक्स है, जो शायद 4% से भी ज्यादा टैक्स होगा जो आपने देना है, वो आप वापस ही नहीं मांग सकते। भाई ये राइट, आप लीगल राइट एक बंदे का कैसे इन्फ्रिंज कर सकते हैं? और उससे तीसरा पॉइंट सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने क्या किया, मेरे पास चूंकि सीएनजी स्टेशन था, जैसे ही आप सीएनजी लिख के फीड करते हैं ना रिटर्न में, आप रिफंड तो बाद में मांगेंगे, वो आपको बिजली का टैक्स एंटर ही नहीं करने देगा। रिफंड तो बाद की बात है, वो आपको जाने ही नहीं देगा, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट। अब क्या होता है, जैसे ही कुछ चीज आती है उसके पैरेलल लॉ पीछे से अमेंड कर दिया जाता है ताकि लोग उस जजमेंट का बेनिफिट ना ले लें। तो ये दोनों पॉइंट्स जो थे मुझे ऐड करने थे इसके अंदर। बाकी यही अच्छा, मैं एक चीज क्लैरिफाई करता चलूं, हम लोग बीइंग एज ए प्रोफेशनल्स
किसी की क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं करते हम, वो उनकी क्रेडिबिलिटी अपनी जगह पे है, चेक होगा, सब कुछ होगा, अपनी जगह पे होगा। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि जब अनड्यू या बेसलेस या अनलॉफुल आप एडिशंस करेंगे तो ऑब्वियसली उससे रिकवरी तो कुछ होनी नहीं है। आप जितनी मर्जी डिमांड क्रिएट कर ले, अगर वो उसकी रिकवरी कोई नहीं होनी है तो फिर आपको असेसमेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा। बहरहाल ये क्योंकि इस सेक्शन तक था, वो मैंने 2 पॉइंट्स इसके अंदर ऐड करने थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, बिल्कुल सही कहा खुरम साहब, और आपकी बातों से मैं भी एज अ प्रोफेशनल आई वुड लाइक टू सेकंड यू, और ये बेसिकली उसी से टाई अप होता है जो हमने बात की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और हैरेसमेंट को खत्म करने के लिए। और शायद ये तब तक नहीं हो सकेगा जब तक डिपार्टमेंट के अंदर के मैकेनिज्म नहीं बदलेंगे। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि सिंगुलर पॉइंट एजेंडा है जिसपे प्रमोशंस, बोनसेस, हर चीज चल रही है, कलेक्शन, किसी और चीज का इंपैक्ट उसके स्केल में नहीं आ रहा, किसी गलत डिसीजन का कोई फॉल बैक नहीं आ रहा। और आई एम श्योर कुमेल इधर सेकंड करेंगे, बीइंग समवन फ्रॉम एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। मैं खुद भी जब ग्लोबल टैक्स फोरम पे बैठता हूँ तो ये चीज देख के हमें बहुत हैरत होती है कि दुनिया के तकरीबन हर टैक्स के निजाम में टैक्स अथॉरिटी को कुछ ना कुछ हद तक अकाउंटेबल बनाया हुआ है। हमारा इस लिहाज से बड़ा यूनिक निजाम है कि उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी। आपने बड़ा सही कहा कि एज प्रोफेशनल वी वुड नॉट डाउट एनीवन्स competency or their intention, but the order speaks for itself. If an independent authority is sitting aside and saying it's baseless and all, then there should be some accountability of the one who is passing that. So शायद ये चीज hopefully future में होगी। Let's move forward. Over to you कुमेल साहब। हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली जो होनी चाहिए और जो दुरुस्त नहीं हो रही। The other day I was having a discussion with a professional friend and we were actually saying that it seems like the budget is drawn by two different kind of experts. One is on the economic side and it seems very sensible, and the other is on the taxation side and it looks like the ministry didn't have any tax experts to guide them, and whatever FPR put forward came in the budget proposals. So you being someone from expertise on both sides, what do you see as the impact of the finance bill of these proposals which are yet to be finalized on the export oriented sectors? Over to you. थैंक यू वेरी मच। और सिर्फ मैं एक पॉइंट यहाँ पर पहले ऐड कर दूँ कि और ये डेफिनेटली जो है वो हमारे दूसरे पैनलिस्ट इंक्लूडिंग योरसेल्फ वुड एग्री कि एक ज़माने में ACR का सिस्टम होता था जिसमें ऑफिसर्स के जो अभी भी है, लेकिन उस ज़माने में होता ये था कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल एन ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड, एन एडवर्स ऑर्डर, and we file an appeal or the taxpayer goes in appeal and actually wins the order, उस वक्त कमिश्नर अपील और ट्राइब्यूनल एक्चुअली इस ऑर्डर की, क्योंकि कॉपीज तो जाती हैं डिपार्टमेंट में भी, तो वो कॉपीज एक्चुअली लीगल डिपार्टमेंट और कमिश्नर्स रीड करते थे और वो रियलाइज करते थे। देखें ना, मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछूं कि आप अपने जूनियर स्टाफ का अप्रेजल कैसे करेंगे? अगर आप उसका वर्क, कंप्लीशन ऑफ वर्क का अप्रेजल नहीं करेंगे तो वो तरक्की कैसे करेगा? आप तरक्की कैसे करेंगे? आपकी फर्म तरक्की कैसे करेगी? सिटी कैसे आगे बढ़ेगा? कंट्री कैसे आगे बढ़ेगा? और ग्लोबल इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी? तो देयरफॉर एक्चुअली असेसमेंट ऑर्डर की रिव्यूइंग कंपलसरी हो जानी चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कि फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ 30 मिलियन, 40 मिलियन, 80 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन का टैक्स लग गया, लेकिन एक्चुअली अगर वो अपील पे पार्टली अलाउ, ट्राइब्यूनल में फुली अलाउ या हाई कोर्ट में फुली अलाउ हो, तो उस ऑफिसर को फिर आगे रिव्यू स्टेज पे जाना चाहिए कि क्या आपकी ट्रेनिंग में कोई लैकिंग है। अगेन मैं किसी की इंटेग्रिटी और उसकी प्रोफेशनलिज्म पे भी मैं भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर आप मुझे पॉजिटिवली मेरे काम को रिव्यू करके मुझे क्रिटिसाइज पॉजिटिवली नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? फिर तो आप मेरे दोस्त ही नहीं हुए, फिर तो आप मेरे जो है वो खैर ख्वाह ही नहीं हुए। फिर तो इसका मतलब है यू आर एक्चुअली ओनली प्रमोटिंग because for example I am a standard bearer somewhere, so therefore this needs to be looked at and this is not something new. Our panelists already know that this was there before. Previously अगर ACR पे लिख दिया जाता था कि is not fit for promotion, God forbid मैं किसी को ये बात डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ, hopefully कोई FBR वाला सुन रहा है तो ये बुरा नहीं मानेगा, और अगर सुन रहा है बुरा मान भी ले तो पॉजिटिवली बुरा मानना प्लीज। लेकिन ये है कि आप प्लीज पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करें
ताकि टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट एज अ होल आगे बढ़े। अब आ जाते हैं आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सवाल है उस पर। देखें, एक्सपोर्ट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोलूं, मतलब ये तो मेरा ख्याल है बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है। करेंसी डिवैल्यूएशंस की वजह से, हमारे बाहर से रिजर्व्स ना आने की वजह से, हमारी इकोनॉमी के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की वजह से क्या हाल है वो सबके सामने है। इसका बड़ा ही देखें एक बहुत ही सिंपलिस्टिक हल है, वो ये है कि एक्चुअली हमने एग्रीकल्चर पे मैं इतना नहीं बोलूँगा, टाइम भी नहीं है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टच कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि ठीक है उनको उन्होंने FTR में डाला हुआ है, 115(4) में रिटर्न फाइल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे बहुत सारे मेजर एरेंड्स हैं, खासतौर पे पिछले साल जबकि वो टैक्सेबिलिटी आ गई टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आया गई, बहुत अच्छी बात है, रिफंड्स दे देते हैं। लेकिन 72 आवर्स में आपने फास्टर सिस्टम पे वादा किया था देने का, मेरा ख्याल है ये तो मैं ये कहूँगा कि अगर 72 आवर्स की जगह ये 7.2 वीक्स में भी दे दें तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्लाइंट को हम कन्विंस कर लेंगे कि 7 वीक्स में आपका रिफंड आ जाएगा। लेकिन बातें वो करना, रिफंड्स के लिए क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार इधर मौजूद है, उनके तो इल्म में है, बड़ी मजे की टैक्टिक्स हो रही हैं। मिसाल के तौर पे आपकी 2016, 17, 15 की रिफंड एप्लीकेशन फाइल है, उस वक्त जाहिर है आयरिस इन न्यू फॉर्म था, कई डॉक्यूमेंट आप सपोर्टिंग मैनुअल देते थे, तो वो एक लाइन का आपको मैसेज आ जाता है, इट वाज नॉट इन द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हेंस आई हैव रिजेक्टेड योर रिफंड। एब्सोल्युटली, वो फिर आप कोट करते रहे। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फिर आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन कोट करते रहे कि आप किसी के रिफंड और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो कभी भी नहीं छीन सकते, और ये तो सिर्फ प्रोसीजरल लैप्स है। बट एनीवे, वो इंशाल्लाह जब आएगा तो हम खुरम साहब को उस वक्त हायर भी कर लेंगे इस मैटर को लड़ने के लिए। लेकिन ये है कि मैं आपको एक और बेसिक सी बात करता हूँ। देखिए, सर्विस सेक्टर को किया ये काफ़ी लोगों को पता होगा कि IT एंड IT इनेबल सर्विसेज की एक्सपोर्ट जो है वो 2020 तक, पे 2022 पे 2025 तक इन्होंने उसके एग्जेम्पशन कर दिए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने, पंजाब रेवेन्यू बोर्ड ने, क्योंकि अब ये प्रोविंशियल मैटर है 18 अमेंडमेंट के बाद सेल्स टैक्स का, उन्होंने भी उसकी इसी तरह से अमेंडमेंट्स लेकर आए। ठीक है, फॉरेन रेमिटेंसी कंडीशन, वेरियस कंडीशन मौजूद है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। मेरी ये राय है कि इतने साल हो गए, 6-7 इयर्स हो गए IT एंड IT इनेबल सर्विसेज, बल्कि एक्चुअली IT इनेबल सर्विसेज की डेफिनेशन के अंदर अकाउंटिंग सर्विसेज का वर्ड डाला हुआ। मेरी ये राय ये है, आप देखें वैसे भी अगर कोई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए बहुत सारे वेज हैं। लोग करते ही हैं कि फिर उस पैसे को दूसरे मीन्स से बेचते हैं, जैसे कि वो सेक्शन 111 की बात हुई, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि सेक्शन 111 में एक्चुअली फर्दर अमेंडमेंट ये होना चाहिए कि अब सिर्फ और सिर्फ फैमिली रिलेशन वाला एलिमेंट आ जाना चाहिए। बट एनीवे, इट्स स्टिल पहला स्टेप तो लिया उन्होंने 5 मिलियन का करने के लिए। मेरी नज़र में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिफंड्स जो खासतौर पे टेक्सटाइल, सर्जिकल और दूसरे जो 5-0 रेटेड पुराने थे, जो SRO 1125 रिसेंट हुआ, और उसके बाद अब ये इनकम टैक्स में भी जो है वो 115(4) करंटली फाइल करते हैं और इनके फास्टर सिस्टम से रिफंड्स आते हैं। मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली वो वाला एलिमेंट भी उनको देखना चाहिए कि भाई ये रिफंड्स आप क्विक दें वरना कैश फ्लो में हिट होगा। दूसरी बात ये कि सर्विसेज सेक्टर के लिए मैं समझता हूँ प्रोविंस के साथ बैठ के कम्प्लीटली इसको एग्जाम कर दें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। आपके पैसे वैसे भी लोग सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मीन्स से पैसे लेकर आ जाते हैं, इलीगल मीन्स से लेकर आ जाते हैं, वर्कर रेमिटेंस भेज देते हैं। इस तरह होगा ये कि आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्चुअली स्टेट बैंक के थ्रू पैसे रिजर्व्स में हिट होंगे। एक्सपोर्ट सेक्टर करंटली बहुत मेजर प्रमोशन चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, लेकिन जो सेक्टर टैप नहीं हुआ है वो मैंने पॉइंट आउट कर दिया कि सर्विस सेक्टर पे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, और इस पे एक्सट्रीम सर्जिकल, यानी जैसे कहते हैं सर्जरी करने वाली बात आ गई, मेडिसिन से भी काम नहीं चलेगा। Thank you, Kumail. Over to you, Arshad Saab. One challenge that we face when we have a panel of experts like yourselves is that the time is always limited. आप जितनी भी बात कर लें आपकी ख्वाहिश रह जाती है, काश और वक्त होता, बहुत सारे इश्यूज रह जाते हैं, लेकिन anyway this is a good talk and we'll continue this series. Arshad Saab, just very quickly in couple of minutes, आप briefly share करें आपकी observations about the finance bill's impact on the manufacturing sector. Kindly अपने अनम्यूट कीजिएगा। जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इस फाइनेंस बिल में बहुत अच्छी खबरें भी हैं, इवन इन द फाइनेंस बिल एंड आउटसाइड द फाइनेंस बिल भी, और कुछ इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। तो जो अच्छी खबरें जो आउटसाइड द फाइनेंस बिल है, मॉनेटरी पॉलिसी के रेफरेंस से जो 7% जो इंटरेस्ट रेट हो गया, वो एक बहुत अच्छी खबर है। और ये
इसको प्रमोट करने के लिए बिजनेस एक्टिविटी को, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को इसका बड़ा रोल होगा। अब इसके अलावा ये जो, क्योंकि हमारी 52 इंडस्ट्रीज तकरीबन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, तो उनको भी फ़ायदा होगा। ये जो हमने कैपिटल गेन वगैरह पे थोड़ा टैक्स रिड्यूस किया है, उसकी लिमिट होल्डिंग पीरियड रिड्यूस कर दिया है एग्जेम्पशन के लिए, तो उससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में डिमांड बढ़ेगी। तो ये और उसमें वो जो आप फैक्टर्स हैं मेंशन कर सकते हैं, अर्शद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, आप मेंशन कर सकते हैं बिल्कुल इससे पहले जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पैकेज और एमनेस्टी आई थी उसका भी इम्पैक्ट। जी, उसका उसी का इफेक्ट, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये है कि जी पहले तो कोई 8 साल के बाद एग्जाम्पशन होती थी कैपिटल गेन की, अब वो 4 इयर्स कर दी कि होल्डिंग पीरियड अगर 4 ईयर है तो वो एग्जाम्पशन। इसी तरह उसकी जो पर ईयर है 25% कैपिटल गेन, उसको रिड्यूस करते जाना उसको। और इसके अलावा उस पर जो टैक्स है वो भी काफ़ी कम कर दिया, ऑलमोस्ट हाफ कर दिया कि 5 मिलियन तक अगर कैपिटल गेन है तो 2.5%, 10 मिलियन तक है तो 5%, 15 मिलियन तक है तो 7.5% और ओवर एंड अबव 10%। तो इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा एक और इन्होंने किया है कि जी ये जो 148 में ये जो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट वगैरह के लिए जाना पड़ता था, उसमें रॉ मटेरियल और कैपिटल गेन के लिए 1% का जो अभी पहले जिक्र हो ही चुका है, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। इसी तरह जो सेक्टर कवर होता था जो प्रीवियसली SRO 1125 था 2011 का, उसमें जो सेक्टर्स कवर होते हैं उनको भी 1% उस पर भी ये इंपोर्ट की स्टेज पे टैक्स होगा। ये तो हो गया अच्छे पहले। अब इसमें एक और भी है इसमें, बल्कि जी जो सेल्स टैक्स में वैल्यू एडिशन टैक्स जो मिनिमम 3% उस पर होता था, वो भी मैन्युफैक्चरर्स के लिए वो नहीं होगा अगर उनका रॉ मटेरियल अपने लिए। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो इसको प्रमोट करेंगे। नेगेटिव में ये आता है कि थोड़ा उन्होंने इसको कर दिया कि जी यूटिलिटी बिल्स जो होंगे इनके, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, FBR लगा सकती है, को प्रपोज करेंगे कि जी किस तरीके से उसको रिड्यूस करना है। अब ये इसमें इस तरह का जो एलिमेंट ऑफ डिस्क्रेशन है ये गलत है। इसी तरह एक और कर दिया कि जी डेप्रिसिएशन आप पहले साल में जितनी आपकी बनती है उसका 50% सिर्फ ले सकेंगे। इसको नंबर ऑफ डेज ऑफ यूज पे भी नहीं रखा, मंथ पे भी नहीं रखा। अगर सारा साल भी आपने इस्तेमाल किया, इवन देन जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 50% ही होगा। यानी वो जितना आपकी डेप्रिसिएशन बनती है उसका 50% मिलेगा। तो ये एक जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनके लिए, ये जिनमें कैपिटल बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है, उनके लिए कैश फ्लो का प्रॉब्लम जो है वो बन जाता है बाद में। इसी तरह एक और इन्होंने ये जो सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए कर दिया, और उसके जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस जो हैं वो कहते हैं कि जी हम डिसअलाउ कर देंगे। दैट इज वेरी अनवेलकम मूव। इसमें जो कि जी उन लोगों को अगर आप सेल कर रहे हैं कि जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने चाहिए थे लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसमें उस टैक्स पेयर का तो कसूर नहीं है अगर रजिस्टर्ड नहीं है। तो वाई FBR इज नॉट वर्किंग ऑन दैट। FBR को काम करना चाहिए, ना कि वो अपनी जिम्मेदारी जो है जो ऑलरेडी सेक्टर टैक्स पे कर रहा है उसको आप एडिशनल बर्डन दे रहे हैं। तो ये कुछ चीजें उसमें, तो ओवरऑल ये मिक्स्ड बैग है। बहुत शुक्रिया आपके एक्सपर्ट व्यूज का। वी हैव नाउ रीच द एंड ऑफ द सेशन। सो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें इसमें हैं, कुछ आप लोगों ने भी मेंशन की, कुछ हम डिस्कस नहीं कर सके, बट वी हैव अ टाइम लिमिटेशन। तो इंशाल्लाह फाइनेंस एक्ट के ऊपर जो हम सेशन करेंगे, विल कीप मोर टाइम फॉर दैट सेशन, ताकि हम आप लोगों के साथ ज्यादा डिटेल में बात कर सकें। आखिरी एक सवाल जिसके बाद हम कंक्लूड करें, और वो आप सबसे है कि हाउ कैन प्रोफेशनल्स, टैक्स प्रोफेशनल्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स फ्रॉम रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशंस लाइक Lahore Tax Bar Association and ACCA and other professional bodies can play their part to further strengthen the tax mechanism and raise the voice. One thing we have seen in the past, Bhatt Sahab, is the collaboration, the joint budget proposals. How do you view and what do you think should be done? So starting from you, Khurram Bhatt Sahab. जी थैंक यू उमर। मैंने अपने वालिद मोहतरम से ये बात सुनी थी कि जब भी किसी साल बजट आने लगता था और अरशद साहब विल बेयर मी आउट, तो एक बकायदा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती थी जिसके अंदर बजट प्रपोजल दिए जाते थे। देखिए इतने सीजन्ड लॉयर्स आपके पास मौजूद है, आपके वालिद हैं,
मेरे वालिद हैं शहबाज भट्ट साहब, इन्होंने एक वक्त गुजारा हुआ है। मैं ये समझता हूं कि जब आप अभी फाइनेंस बिल बनाने लगते हैं, उस फाइनेंस बिल को बनाते हुए ही जो बजटरी मेजर्स हैं वो सामने ले आनी चाहिए, प्रपोजल सामने ले आनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली what I have witnessed is that after the through finance bill the changes have been proposed, तो अनॉमली कमेटी आपने कॉन्स्टिट्यूट कर दी और अनॉमली कमेटी में कुछ लोग, देखिए पहले आप गलती करेंगे, उसको अनॉमली कमेटी के सामने रखा जाएगा और उसको फिर दुरुस्त किया जाएगा। मेरी नजर में इस प्रपोज फाइनेंस बिल को बनने से पहले कुछ ऐसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। मैन वी हैव बीन running from pillar to post for that. We have at a number of times wrote to the Federal Board of Revenue that there should be some committee in the beginning. जब आप देखिए लेजिस्लेटिव जो अमेंडमेंट्स हैं वो पूरे साल देखी जा रही होती है, पूरे साल जजमेंट्स आती हैं, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स या तो अपहोल्ड की जाती हैं या स्ट्राइक डाउन की जाती हैं। अब ये जो एक हम बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपस में डिस्कस कर रहे हैं 10% वाली कंडीशन वाली, इसको प्रपोज करने से पहले अगर किसी शख्स को ये पता हो कि 3 जजमेंट्स आ चुकी हैं जिसके थ्रू इस प्रोविजन को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि यकीनन कोई सीजन लॉयर जिसने पहले प्रैक्टिस की हो वही गाइड कर सकता है, ये बजाय इसके कि ये बाद में प्रपोज होने के बाद नॉर्मली कमेटी के सामने जाए और फिर नॉर्मली कमेटी सजेस्ट करे कि ये बिल के थ्रू तो आ गया है, ठीक है, से पास एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू नहीं पास हो जाना चाहिए। तो मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि बॉडीज को बिफोर दिस बिल इज प्रपोज्ड, द अमेंडमेंट्स आर प्रपोज्ड थ्रू द बिल, देयर शुड बी अ कमेटी constituting the different bars all across the country, the Pakistan Tax Bar Association, ACCA, ICAP and different other, जहां पे देखिए टैक्स प्रोफेशनल्स बैठे हैं पूरे साल, जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है क्या हो रहा है, they will propose how the laws should be amended। तो मेरी जाती राय है जी कि तमाम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बार, ACCA, ICAP, इन सबको एक जगह पे बैठना चाहिए और एक कमेटी का पार्ट होना चाहिए जहां ये बजटरी प्रपोजल को डिस्कस किया जाए। अच्छा, अब उसका जो इफेक्ट है उसकी डिस्कशन कहीं नहीं हो रही। देखिए अमेंडमेंट तो प्रपोज कर दी गई, उसका इफेक्ट क्या होगा? अब क्या होगा कि ये 10% वाली अमेंडमेंट अगर सपोज पास हो जाती है तो एवरीबडी विल बी गोइंग टू द कोर्ट। इज देयर एन इंटेंट ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्स लिटिगेशन? आई होप कि ये इंटेंट नहीं है, लेकिन जो इंटेंट है वो मैंने आपको पहले बता दी। 100 रुपए टैक्स, 500 रुपया टैक्स लगेगा, सीआर अपील 300 करेगा और 300 का 10% लिया जाएगा। दिस इज आई थिंक टू बी ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट विजिट टू एफपीआर। थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑलवेज देयर जी। आई ऑलवेज वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री। मेरी कोशिश ये है कि जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, जिसमें हम पार्ट एंड पार्सल हैं, स्टेक होल्डर हैं, इसकी बेहतरी में हमारी बेहतरी है। देखिए अभी बदामी साहब एक बात कह रहे थे, देखिए वहां पे 2500 पाउंड अगर दे दिए गए तो सर यू आर इन अ पोजीशन, द गवर्नमेंट इज इन अ पोजीशन दैट इफ यू विल पे टैक्स दिस बेनिफिट यू विल गेट। हम तो यही, जो नदीम भट्ट साहब ने इस तरफ इशारा किया, हम अनफॉर्चुनेटली अपने क्लाइंट को यही नहीं समझा पा रहे व्हाई यू आर पेइंग दिस टैक्स। तो आपकी जहां आप बैठे हैं, लेकिन ये बात एक चीज सामने रखनी चाहिए, वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है एंड वी कैन नॉट कंपेयर दैट इकोनॉमी विद पाकिस्तान। तो ये एक अपनी जगह एक रियलिटी है। तो मेरा व्यू ये है कि सर the question, coming back to the question which has been posed, कि प्लीज हम लोग मिलके इस मुल्क को संवारना चाहते हैं। इसमें लाहौर टैक्स बार का अपना रोल है, पाकिस्तान टैक्स बार का अपना रोल है, ACCA का अपना रोल है, ICAP का अपना रोल है। लेट अस कम फॉरवर्ड एंड कोलैबोरेट। हम सब लोग चाहते हैं इस मुल्क को आगे लेके जाए जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।
वेरी वेल सेड, बिल्कुल सही कहा कि हमें जो सच बात है वो करनी चाहिए और कोलैबोरेशन से एक आवाज उठाएं तो ज्यादा बासर होगी। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रन ओवर द टाइम और मैं कुछ कमेंट्स भी आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ जो हमें रिसीव हुए हैं। तो बाकी जो हमारे रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स हैं, इफ आई मे हम्बली आस्क यू ऑल टू वेरी ब्रीफली आंसर द सेम क्वेश्चंस and don't repeat what's already been said. So other than what Khurram Saab has said, anything else you want to add? What can professionals like us do, professional institutions like ACC and Lahore Tax Bar do to play their part to improve the process? Over to you, Nadeem Bhatt Saab. जी, भट्ट साहब ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है जी। ये तो इतना कुछ करने के बाद इफ वो क्या क्या कहते हैं जी, एवरीथिंग इज वेल इफ एंड इज वेल। अगर एंड पे कुछ रिकवरी नहीं होनी है या तो ठीक है। अच्छा चले, अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ। अभी ना एक दो चीजें मैं क्विकली एक दो पॉइंट्स ऐड कर दूं जो कि क्योंकि कलेक्टिवली उसका इफेक्ट आना है। इंपोर्ट्स के अंदर ना 12 शेड्यूल जो ऐड हुआ है ना, उसका पार्ट 3 अभी तक हम उसकी बात नहीं कर रहे। पार्ट 1 है कैपिटल गुड्स का, पार्ट 2 है रॉ मटेरियल का और पार्ट 3 है फिनिश गुड्स का, जिसमें रेट है 5.5% और वो एडजस्टेबल नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि जब वो एडजस्टेबल नहीं होगा, वो 5.5%, आप तो 1% 2% की बात कर रहे हैं ना, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में नहीं आएगा उसमें देखें कोड्स डिफाइंड है, पीटीसी जो पाकिस्तान कस्टम के टैरिफ के जो कोड्स हैं। अब होना यह है कि कुछ आइटम ऐसे होंगे जो पार्ट 1 में नहीं आएंगे, कुछ 2 में नहीं आएंगे, वो ऑटोमेटिक 3 के अंदर चले जाएंगे। जब तक वो उसको आप अमेंड नहीं करेंगे तब तक 5.5% जैसे वो उन्होंने कहा कि वो असेस्ड वैल्यू के ऊपर आपकी डिक्लेयर्ड नहीं असेस्ड वैल्यू के ऊपर आप पे करेंगे तो फंड्स तो फिर आपके ब्लॉक हो गए। तो इसको इट नीड्स टू बी रिकंसिडर कि आप या तो उसके अंदर एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दें या उसके ऑब्वियसली उसको देखें कि अगर तो आपने तमाम कैपिटल गुड्स और तमाम रॉ मटेरियल पार्ट 1 और 2 में कवर कर ली है फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन फंड्स जब ब्लॉक होंगे तो प्रॉब्लम होगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक और पॉइंट बस ऐड करता चलूं, उसमें एक बेनिफिशियल है जो अभी तक हमने शेयर नहीं किया, लेटर ऑन हम करेंगे कि विद होल्डिंग जो 153 सेक्शन है ना, उसके अंदर बड़ी अच्छी अमेंडमेंट आई है जो फेवरेबल है, वो तमाम लोगों के लिए है अदर देन ए कंपनी। क्योंकि कंपनी अगर आप हैं तो विद होल्डिंग एजेंट आप हैं, इरिस्पेक्टिव के बाकी आप 8-9 क्लॉजेस मेट करते हैं कि नहीं करते हैं उसकी प्री कंडीशंस को। नंबर 1 ये है कि जो 50 मिलियन की लिमिट थी इंडिविजुअल एओपी जो टर्नओवर है वो 100 मिलियन पे चला गया है, तो ये एक काफी अच्छी अमाउंट है जिससे उसको विद होल्डिंग टैक्स नहीं काटने पड़ेंगे। नंबर 1, अगर वो प्रोवाइडेड दूसरी प्री कंडीशंस में से कोई भी मेट ना करे। नंबर 2, जो सेल टैक्स में था सिर्फ रजिस्ट्रेशन अगर होती थी तो वो विद होल्डिंग एजेंट बन जाता था, वो अमेंड हो गया है, उसमें उन्होंने डाल दिया वो भी 100 मिलियन एटलीस्ट टर्नओवर करेगा तो तब वो विद होल्डिंग एजेंट बनेगा। तो ये चूंकि कलेक्टिवली दोनों का इफेक्ट है। अब हम देखते हैं फाइनेंस एक्ट में क्या फाइनल होके आता है और उस पे फिर आपसे डिटेल से हम पूछेंगे कि कितना बेहतर है। सो विद दैट, with your permission, allow me to take closing remarks from Kumail and Arshad Saab. So anything you want to add, Kumail? How can we professionals play our part to improve the processes? बिल्कुल, जस्ट 1 पॉइंट क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है प्रो बोनो। इसमें होता ये इंटरनेशनली, जब ऑफ कोर्स मैं कोई बात जब पॉजिटिव करता हूँ तो मेरा कतई ये मतलब नहीं होता कि मैं ऑरेंजेस को एप्पल से कंपेयर करना चाह रहा हूँ, but at least we should try to have, you know, reddish apples if you like them or the greenish ones. But anyway, pro bono concept में आपको एक बात कहना चाहता हूँ। ये वर्ड लाइमलाइट में तब आया है जब एक रिसेंटली चेयरपर्सन जो है वो आए थे प्रो बोनो बेसिस पे, लेकिन एक्चुअली प्रो बोनो का कॉन्सेप्ट उनसे लिंक्ड कोई डायरेक्टली नहीं है। एडवोकेट्स मुझसे बेहतर जानते हैं कि प्रो बोनो का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली पूरी दुनिया में मौजूद है। मैं समझता हूँ LTBA, पाकिस्तान टैक्स बार, ACCA, सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रो बोनो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जहाँ पर फर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस को लिखेंगी। मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि व्यूअर्स भी समझ जाए, आपको लोगों को तो पता ही है कि जहाँ पर कोई भी केस ऐसा आएगा जो कि किसी के साथ अनफेवरेबल असेसमेंट हुआ है और वो जाहिर सी बात है कि वो फीस नहीं दे पा रहा, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो किसी वकील को हायर कर सके, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को लिखता है, वो ऑर्गेनाइजेशन उसको व्यू करती है। अगर वो केस प्रॉपर होता है तो वो उसको फिर आगे प्रो बोनो बेसिस यानी विदाउट फीस किसी और फर्म को पास ऑन कर देती है, जो कि फर्म फॉर एग्जांपल LTBA या ACCA के साथ लिंक्ड है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही लाजिम है हमारे लिए करना
कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। साल में अगर 2-4 केस किसी फर्म को मिल जाते हैं जो विदाउट फीस उनको करने हैं, तो उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पर्सनली बता रहा हूँ आपको कि कोई असर नहीं पड़ेगा। होगा ये कि लोगों को तवज्जो होगी कि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो एक काम है कि दोनों तरफ लोगों को कॉम्बिनेशन में कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पे लाना, वो हो जाएगा। तो प्लीज इसको रिव्यू आप लोग जरूर कीजिएगा। LTBA और ACCA दोनों की तरफ से रिक्वेस्ट है। I will discuss this idea off stage with you in the context of tax practice. The idea is fantastic, but in the context of tax practice, I think only salaried people will be enjoying what you said. But thanks for the addition. So It would be a start. Yeah, over to Arshad Saab. Arshad Saab, any closing remarks? जी सर, जो हमारी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, या जैसे लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन है या दूसरी एसोसिएशन है, और जिस तरह से हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं या बॉडीज़ हैं, तो ये हेल्प कर सकती हैं। FBR में 3 इश्यूज़ हैं, 3 स्टेजेस पे, पॉलिसीज़ पे, प्रोसीजर्स पे और पर्सन्स में। तीनों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। पॉलिसीज़ के लिए आप गाइडलाइंस दे सकते हैं, आप मशवरा दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। प्रोसीजर्स आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि किस तरह से इनको ठीक किया जा सकता है, यह भी आप हेल्प कर सकते हैं। और पर्सन्स की आप कम से कम और कुछ नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग ही उनको कुछ लेवल तक दे दें ताकि वो गलत किस्म के असेसमेंट्स ना करें। Thank you very much, Arshad Saab. Very succinct. I know there is a lot we all want to add, but in the interest of time, I would just like to share few feedbacks before the note of thanks. Wonderful session, terrific coverage of the finance bill and the impact of proposed taxation. Thank you, ACCA and LTBA. Well said. I think that was some specific comments to our speakers, especially all of you. In fact, it's been named while you were speaking. So great feedback from the attendees too. And I would like to thank you all for taking time out of your busy schedules on behalf of ACCA and Lahore Tax Bar Association and joining us today. Of course, it's a topic in which whatever time you spare will always be limit, because when we have experts, the extent of discussion can be as much as you wish. We have discussed some key points. There were others we wish we could have discussed if we had more time. However, we will be having a session, inshallah, on Finance Act. We have already discussed that with Khurram Bhai, and we will try to bring this panel together as well as some dignitaries from FBR and continue this discussion in the context of the Finance Act. So thank you all for sparing the time. Thank you for ACCA and Lahore Bar team for organizing this seminar today online. And thank you for all our attendees for sparing the time on a short notice. And thank you for our honored panelists for your valued insights, which I'm sure have been highly appreciated by all. Thank you all. Have a good day. Thank you. Thank you. Thank you.